Hey everyone, I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC. Welcome to MedPrep classes, and in this video we will start a new topic, that is reproductive health. Reproductive health, and we have covered about various human reproductive systems and their functions. Now start with reproductive health. The term simply refers to the healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो टर्म है उससे तो हमें साफ पता चल रहा है कि जैसे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, लेकिन इसके अंदर इसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। उसके अंदर हमने इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रखा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। तो जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या चार चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल ऑल्सो। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy. तो कैसी सोसाइटी को हम reproductively healthy बोल सकते हैं, जिसके individuals physically, emotionally, socially and behaviorally well developed हों. Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods to achieve it? Let us examine them. Reproductive health problems and strategies. India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs at national level. अब ये सबसे एक important question है, यहाँ से इससे भी question आता है, to attain total reproductive health as a social goal. तो सबसे पहले जो national program reproductive health care के शुरू हुए थे वो इंडिया के अंदर शुरू हुए थे, and these programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. 1951 में family planning programs शुरू हुए थे इंडिया के अंदर, एंड अब पीरियोडिकली हम उनके अंदर नए नए एस्पेक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं. Okay, and improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name known as reproductive and child health care programs, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. तो इन programs के जरिए reproductive and child health care program के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर एक तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें अलग अलग तरह का मटेरियल सपोर्ट और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं टू बिल्ड अप ए हेल्दी सोसाइटी. विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. Parents, other close relatives, and teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above knowledge. तो हम अलग अलग विजुअल और प्रिंट मीडिया के का यूज करके हम वेरियस जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हैं, और जो एक चाइल्ड को जो सेक्स एजुकेशन होती है उसके अंदर उसके पेरेंट्स, उसके क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं. Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases like AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. ये बिल्कुल सिंपल लाइन्स है, इसमें कुछ खास नहीं है. Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers,
पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, पोस्टनेटल मीन्स बर्थ के बाद में, प्रीनेटल होता है बर्थ से पहले, ओके, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज for the male and female child, would address the importance of bringing up the socially conscious healthy families of desired size। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हमने अभी भी पढ़े, जैसे कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब कुछ इन्हीं प्रोग्राम के अंडर आ रहा है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social levels like sex abuse, sex related crimes, etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society. Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। अब अगर हमें इन प्रोग्राम्स को बिल्कुल सक्सेसफुल करना है तो हमें उनके लिए क्या क्या चाहिए, हमें हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर मेडिकल केयर डिपार्टमेंट होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लाइक डॉक्टर्स, नर्सिस एंड वेरियस सोशल वर्कर्स की टीम्स होनी चाहिए, एंड मटेरियल सपोर्ट, वेरियस जो ड्रग्स चाहिए होती हैं या फिर कहें तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स चाहिए होते हैं, सभी हमारे पास होने चाहिए अवेलेबल, तभी हम इन प्रोग्राम्स को जो मोटिव है उसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। दीज आर असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक अब ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs means sexually transmitted diseases, abortions, contraception and menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of family feticides। अब क्या है, जो एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक होती है ना, उसके जरिए हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और पहले क्या होता था, इसके जरिए लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के अगर फीमेल चाइल्ड होता था तो उसका टर्मिनेशन करवा देते थे, फीमेल फीटस का। तो अब इसको लीगली बैन कर दिया गया है एमनियोसेंटेसिस को, एंड ये भी पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंडर ही आता है वैसे इनडायरेक्टली देखें तो, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस के जरिए हम वेरियसली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं एक फीटस जिसका सस्पेक्ट हो सकता है, तो वो आप डेटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे कि लाइक डाउन सिंड्रोम एंड वेरियस अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एंड जो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन जैसे पोलियो ड्रॉप्स और ये सारे प्रोग्राम्स भी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर आते हैं। एटसेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स। हम क्या करते हैं कि जो एमनियोटिक सैक होता है उसमें से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसमें कि उसकी जो फीटल सेल्स होते हैं या फिर जो उसके अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनको चेक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। तो ये जो डिसीजेज हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इनको हम आगे जो जेनेटिक्स के चैप्टर्स आएंगे उनमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इनसे क्वेश्चन आता है एमनियोसेंटेसिस से हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स का पता कर सकते हैं, तो ये तीनों अगर एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इन तीनों का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों को आपस में जंबलिंग करके, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया को। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। अब क्या है, जैसे सहेली है, सहेली क्या है, एक 1 से वीक पिल होती है, एक तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल्स यूज करती हैं। तो सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ इन इंडिया। तो अब सहेली से क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको फीमेल्स यूज करती हैं और एक तरह की 1 से वीक पिल है ये, और डेवलप किसने किया है, CDRI लखनऊ ने। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर्स ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। अब क्या है, इन सभी चीजों का अगर हम फॉलो करते हैं तो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है, और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज and better detection and cure of STDs are overall increased medical facilities for all sex related problems etc. all improve reproductive healthy society। अब इनका एक फायदा तो ये हुआ कि अलग अलग हम जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को अगर सही से फॉलो किया जाए तो उनको हम क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, आज के टाइम में जो हम डेवलप जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, जैसे जैसे हमें मेडिकल केयर ज़्यादा मिल रही है, वैसे वैसे क्या है, लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण भी बनता जा रहा है। तो पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन एंड बर्थ कंट्रोल इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट से कोई फील्ड हो, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the population. The world population, which was around 2 billion थी in 1900, rocketed to about 6 billion हो गई 2000 के अंदर। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 के अंदर कितनी थी, नियर बाय 2 बिलियन, और 6 बिलियन हो गई वो पूरे एक सेंचुरी के बाद में। कितनी हो गई, 2000 में वो 6 बिलियन हो गई, और 7.2 बिलियन हो गई इन 2011। यही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी ऑब्जर्व हुआ है। अपनी पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और ये 1 बिलियन के पास पहुंच गई बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011। Rapid decline in death rate and maternal mortality rate, infant mortality rate, as well as an increase in the number of people in reproducible age are probable reasons for this। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या है, डेथ का जो रेट है उसके अंदर बहुत गिरावट आ गई, क्योंकि मेडिकल केयर है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है एज कम्पेयर टू बिफोर। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी बहुत कम हो गया है। एंड जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के अंदर जो पीपल हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, थो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बट इट वॉज ओनली मार्जिनल। हम मार्जिनल ग्रोथ रेट को ही कम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो 2011 की सेंसस रिपोर्ट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज less than 2%, that is 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly। अब ये तीनों लाइनें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा PGR पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, दैट इज लेस देन 2%, मीन्स 20,000 पर ईयर, 20 per thousand per year। Okay, and such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, that is food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas। अब 20 per thousand एक तरह से देखें तो इससे 0 से 0 कट गया and 2% बन गया ये। ओके, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। And the most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। And अब मीडिया के अंदर various posters के थ्रू शो किया जाता है, a happy couple with 2 children with a slogan like this, हम दो हमारे दो। And many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted one child now। तो अब हम various print media और audio visual media के थ्रू वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और स्मॉल फैमिली
की एडवाइस को प्रमोट कर रहे हैं। एंड रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड मेल ऑफ 21 ईयर्स। एंड इंसेंटिव्स होते हैं एक तरह का गिफ्ट ही समझ लो, एक तरह का इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर two of the other measures taken to tackle this problem. And let us describe some of the contraceptive used by females which help prevent unwanted pregnancies, जो कि unwanted pregnancies को prevent कर सकती हैं। जैसे कि अब हम बेसिक एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ते हैं और उसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए एंड विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। अब पेपर में यही क्वेश्चन आता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल। अब बीच में ऑप्शन डाल देगा अनअफेक्टिव या इरिवर्सिबल डाल देगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, अफेक्टिव, रिवर्सिबल एंड विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories like natural and traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables and implants and surgical methods. These are various methods come under contraceptive agents or contraceptive methods. अब जो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है और हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।